Hello, my dear students. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. This is a video for the class 10th students. We are doing the chapter matrices. I have already put up a few lectures of this chapter before this, and we have completed more than half of the chapter in the previous lectures. So a small part is left. Today we will be discussing how do we multiply two matrices, a very important topic of this chapter, matrices. Okay, so in the previous lecture, we have discussed how do we multiply a single number in a matrix. Okay, so that part was very simple. Here we are going to multiply two matrices. Okay, so let us see how we can do that. Before proceeding with this lecture, I just wanted to request all of you that if you haven't watched the previous lectures of this chapter, then first watch them, because if you don't watch them, then you may not understand the lecture of today. The previous concepts are very important. So there is a playlist named matrices where you will find all the previous lectures arranged properly. You can just watch them before attending this lecture. And in case you like the lecture, then press the like button, subscribe to the channel. And now let us start the topic, multiplication of two matrices. Suppose I have matrix A, which is 5 comma 5 4 3 9, and I have a matrix B, say 7 2 9 4. Okay, so the order of both of the matrices are 2 cross 2 or 2 by 2. Okay, now when I am multiplying A into B, so I will write AB and then I will be solving it. Right now I'm not going to the process how do we solve it, because before how do we solve it, there are certain more things that we need to know. So when I'm writing AB, it is A into B. Okay, that means basically you are multiplying matrix A, which is the first matrix, into the second matrix, which is B, 7 2 9 4, right? तो हम जब बोलते हैं A into B, तब इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स, क्योंकि ये हम लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स. So A is our left hand matrix and B is our right hand matrix. ठीक है, ये हो गया एक कंसेप्ट. तो जब मैं A into B लिख रहा हूं, so A is left hand matrix and this B is right hand matrix. So आगे मैं कई बार ये वर्ड यूज करूंगा, लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स, राइट हैंड मैट्रिक्स, ये समझ में आना चाहिए. द फर्स्ट मैट्रिक्स दैट यू हैव रिटन इज लेफ्ट साइड मैट्रिक्स एंड द सेकंड मैट्रिक्स व्हिच इज देयर इज द राइट हैंड मैट्रिक्स. ठीक है, एंड द मोमेंट आई राइट BA, then B becomes the left hand matrix. When I write B into A, तो ये जो B को मैं पहले लिखूंगा into A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ पे हम लिखने वाले हैं yes, A को मैंने सेकंड में लिखा. So B becomes our left hand matrix and A becomes our right hand matrix. ये क्यों जरूरी है? Why are we saying it in such मतलब why am I emphasizing this so much कि AB को ऐसे लिखेंगे, BA को ऐसे लिखेंगे? क्योंकि जब मैं 2 into 3 लिखता हूँ और उसका आंसर भी 6 आता है, 3 into 2 लिखूंगा उसका भी आंसर 6 आएगा. तो ऐसा तो हमने कभी मैथ्स में नहीं पढ़ा है कि दिस इज द लेफ्ट हैंडेड नंबर एंड 3 इज द राइट हैंडेड नंबर, फिर इधर 3 इज लेफ्ट हैंडेड नंबर एंड 2 इज राइट हैंडेड नंबर. ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हाउ डू वी राइट इट, बट मैट्रिक्स में पड़ता है. व्हेन वी मल्टीप्लाई A into B, द आंसर मे नॉट बी सेम एज B into A. ये बहुत बहुत बड़ा बात मैंने बोला है अभी, कोई मजाक वाली बात नहीं बोला. मैट्रिक्स एडिशन में लेकिन ऐसा नहीं होता है. A प्लस बी करता हूं और B प्लस ए करूंगा तो सेम आंसर आएगा. मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो बिल्कुल नंबर्स में भी ऐसा ही होता है. तुम अगर 2+5 करो या 5+2 करो, दोनों केस में सेम आंसर आएगा 7. तो मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है. A प्लस बी सेम एज B प्लस ए मैट्रिक्स. हमने ये सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिया है. लेकिन गौर करने वाली बात है दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव. AB is not always equal to BA. We will prove it by actual solving it. Okay, तो ये एक मैंने चीज तुम लोगों को भी सबसे पहले सावधान कर दिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए हमने ये नेसेसरीली इक्वल होगा ही ऐसी बात नहीं है. अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है.
तो इस बात का हमें ध्यान रखना, इसलिए लेफ्ट राइट साइड का एक इंपॉर्टेंस है. when they have asked you in the question to find the AB, that means A को पहले लिखना लेफ्ट साइड में, B को राइट साइड में, फिर सॉल्व करना. और अगर उन्होंने बोला BA, तो B को पहले लिखना, A को एज अ राइट मैट्रिक्स लिखना, फिर सॉल्व करना. नहीं तो गलत हो जाएगा, बिकॉज आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं. This is the first important thing that I wanted to discuss regarding matrix multiplication. अब हम बात करेंगे how to be sure that whether the matrix can be multiplied or not. पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया. कंसेप्ट क्या था? फर्स्ट कंसेप्ट क्या था चिल्ड्रन? फर्स्ट कंसेप्ट ये था कि लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स क्या होता है एंड राइट हैंड मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया. और इसका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना, वो भी मैं क्लियर कर दिया. बिकॉज द आंसर्स कैन बी डिफरेंट. ए इंटू बी मे नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए. वो जब हम सॉल्व करेंगे तब ये मैं प्रूव भी कर दूंगा. ये क्लियर हो गया. अब जो सेकेंड पॉइंट हमें क्लियर करना है वो है हाउ टू बी श्योर वेदर टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड और नॉट. ओके, that means we are going to check the compatibility for multiplication of matrices. Compatibility for multiplication of matrices. अब देखो, मैंने जब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया था, मैंने एक चीज बताया था कि क्या बताया था चिल्ड्रन, कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर order should be same, because if they are of unequal orders they cannot be added. तो एडिशन के लिए क्या कंडीशन था कि एडिशन तभी हो पाएगा जब मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है से m क्रॉस n और एक दूसरा मैट्रिक्स है b, उसका भी m क्रॉस n ही होना चाहिए. द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम. ओनली देन द टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड. सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही रूल था. सब्ट्रैक्शन में भी सेम था. मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन में लेकिन ये नहीं है ऐसा. दिस इज नॉट द कंडीशन और द पैरामीटर फॉर कंपैटिबिलिटी. ये एडिशन का पैरामीटर है, सब्ट्रैक्शन का पैरामीटर है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन का कुछ अलग ही फंडा है. वो क्या है? अब हम देखेंगे कि कैसे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कंपैटिबिलिटी रूल है. मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है ए क्रॉस बी, ए बाय बी, एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है बी क्रॉस एम. देखो, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल अलग है. एक है ए क्रॉस बी, एक है बी क्रॉस एम. मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे नंबर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं कि अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5x7 और एक मैट्रिक्स है 7x3, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यस, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. क्यों कर सकते हैं चिल्ड्रन? हाउ कैन वी से दैट वी कैन मल्टीप्लाई? अगर तुम गौर से देखो, द नंबर ऑफ कॉलम्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स in left matrix, A is left matrix है ना, number of columns in left matrix is equal to the number of rows in the right matrix. यही कंडीशन होता है, यही कंडीशन होता है अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द लेफ्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द राइट मैट्रिक्स, ओनली देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. यानी अगर मैं ए क्रॉस बी तो हो सकता है, लेकिन क्या मैं इसी मैट्रिक्स को बी क्रॉस ए कर सकता हूं? क्योंकि बी का ऑर्डर 7x3 है एंड ए का ऑर्डर 5x7 है. तो क्या अभी लेफ्ट मैट्रिक्स हमारा बी हो गया, क्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन द लेफ्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स मींस राइट मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं. 3 इज नॉट इक्वल टू 5. हेंस आप a इंटू बी कर सकते हैं लेकिन b इंटू ए नहीं कर सकते हैं. इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स एंड राइट हैंड मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस कितना है बताया था. एक तो रीजन मैंने बताया था कि आंसर हो सकता है अलग अलग हो, और अभी एक रीजन मैं इसका बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि ए क्रॉस बी तो पॉसिबल है लेकिन बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं है.
इसी एग्जाम्पल से अभी मैंने बताया। तो देखो 5 into 7 जो है ए का ऑर्डर एंड 7 into 3 है बी का ऑर्डर, तो ए इंटू बी इज पॉसिबल बिकॉज ये 7 और ये भी 7 है, इसका रो आई मीन इसका कॉलम एंड इसका रो इक्वल है। लेकिन बी क्रॉस ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस 3 एंड दिस 5 दे आर नॉट इक्वल, हेंस बी क्रॉस ए इज नॉट पॉसिबल। आई होप दिस इज क्लियर। तो कंपैटिबिलिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में अगर हमें सेंटेंस में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, क्या रूल है कंपैटिबिलिटी का? द नंबर ऑफ कॉलम्स in left hand matrix must be equal to the number of rows in the right hand matrix। ये हो गया हमारा कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कि दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है बट दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स से 3 2 4 5 6 9 and I have a matrix say 4 3 2 9 8 2। तो अगर ध्यान से देखो ए का ऑर्डर, हाउ मेनी रोज डज इट हैव? इट हैज 2 rows and 3 columns and इसका भी 2 rows and 3 columns। तो can they be multiplied? Can we get a into b? The answer is no, not possible। Why it is not possible? क्योंकि अगर ध्यान से देखो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज 3 एंड बी का नंबर ऑफ रोज इज 2, हेंस वी कैन नॉट मल्टीप्लाई ए एंड बी। we cannot multiply a and b, and neither b cross a is possible। I mean b into a is possible, ये भी possible नहीं है क्योंकि b का भी ये 3 है और ये 2 है। तो फिर b into a is also not possible, neither a into b is possible। तो ये मत सोचना कि सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं। लेकिन इस केस में हो सकता है, जैसे अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 2 4 9 4, this is 2 cross 2, matrix b is 9 4 maybe 9 9 4 6 कुछ भी, but this is also of the same order and both of them are of the same order and they can be multiplied also। Why? Because the number of columns in the first matrix, suppose मुझे a b करना है, so a is the first matrix, left matrix, number of columns in the left matrix is equal to number of rows in the second matrix, right matrix। तो इसमें हो सकता है, तो ये कंडीशन नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं। ऑर्डर सेम होगा ये जरूरी नहीं है तब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है। ये रीजन है मल्टीप्लिकेशन में कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स इक्वल हो गया राइट हैंड मैट्रिक्स के रो के साथ, ये रीजन है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे ए इंटू बी को। आई होप द कंपैटिबिलिटी कंडीशन इज क्रिस्टल क्लियर। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ डू वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस? देखो ये मैं बताऊंगा एक सिंपल से एग्जाम्पल से, फिर धीरे धीरे हम बड़े मैट्रिक्स में भी जाएंगे एंड यू विल नॉट गेट इन एग्जाम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरी लार्ज साइज्ड मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 इतना ही तक आएगा। 4 क्रॉस और उससे बड़ा वाला मैट्रिसेस एग्जाम में नहीं पूछेगा, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो हम अभी स्टार्टिंग करते हैं, अभी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को हम एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए which is 3 4 5 0 and I have matrix B which is 1 2 3 4। now you have to tell that, you have to think that whether matrix multiplication of A into B is possible or not। तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि this is 2 cross 2 and this is 2 cross 2। अगर मैं तुमसे पूछूं why can we multiply A and B, why is it possible, तो ये मत बोलना सर बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम देयरफॉर वी कैन मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है? बोलना सर द नंबर ऑफ column in the left matrix means A is equal to the number of rows in the right matrix which is B। दोनों ही 2 है and therefore we are able to multiply। अब एक नया चीज मैं बताता हूं, जब भी हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना, तो जो फाइनल इसका आंसर होगा A इंटू बी का जो आंसर होगा
उसका ऑर्डर हम बिना सॉल्व किए हुए ही पहले से बता सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट आंसर है, इसका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, वी कैन से इट इवन बिफोर सॉल्विंग इट। बहुत सिंपल है। उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब दिस टू क्रॉस दिस टू, इसका भी आंसर 2 क्रॉस 2 ही होगा। तो बहुत सिंपल है। क्या अभी मैंने रूल बोला कि अगर तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्या देखना है। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है x जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है y उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है x इंटू वाई? जी हाँ पॉसिबल है, क्योंकि n एंड n दोनों जगह n है, मींस नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसका जो आंसर होगा एक्स वाई, जो इसका जो भी इसका आंसर होगा सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, जिसको मैं अभी बताऊंगा हाउ टू सॉल्व इट, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा वो मैं बता सकता हूं। जैसे मैंने अभी गोल किया, नंबर ऑफ rows in the first matrix cross number of columns in the second matrix. This will be the order of the product matrix, यानी m क्रॉस p। तो इसका जो आंसर जो होगा उसका ऑर्डर है m क्रॉस p। तो बहुत सिंपल है। देखो कितनी चीजों को हमने अभी सीखा। तो कंपैटिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें इनको चेक करना है, ये दोनों सेम है कि नहीं। सेम है तो कंपैटिबल है। और प्रोडक्ट का ऑर्डर निकालने के लिए हमें इन दोनों को देखना है, m इंटू पी। ठीक है, तो अभी तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो मैं इसको इरेज कर दूं इन सभी चीजों को। 2 क्रॉस 2 एक बार मैं साफ से लिख दिया, क्लीन हो गया। नाउ यू सी हाउ डू वी सॉल्व इट। सो आई एम राइटिंग a first, 3 4 5 0, and then b 1 2 3 4. Now how do we start it? How do we start? So we will see the first row of the first matrix. Hello, listen carefully. We will see the first row of the first matrix. तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, अभी ध्यान से देखो, फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। याद रखना, ऐसे देखना है, यही रूल है, उल्टा नहीं लेना है। फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें प्रोडक्ट करके ऐड करना है। मींस कैसे, 3 को हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 4 को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। दिस विल बी द एलिमेंट ओवर हियर। हमें तो एक चीज ऑलरेडी पता है कि जब हमारा प्रोडक्ट आएगा उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही होगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि यहाँ भी 2 है, ये 2 है, तो 2 क्रॉस 2 होगा। दैट मीन्स वी विल हैव 4 एलिमेंट्स पोजिशनड लाइक दिस। तो ईच ऑफ द बॉक्स विल हैव अ नंबर। दिस एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ एक एलिमेंट होगा, देन ओनली इट इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है, दिस एलिमेंट, उसको उसका आंसर कैसे निकालेंगे, दिस 3 into this 1 plus this 4 into this 3। तो हमें ऐसे निकालना है, राइट right? तो अभी हमने हाईलाइट किया हुआ लाइंस को मैंने इरेज कर दिया। नाउ जस्ट सी, 3 into 1 प्लस 4 into 3, ये हो गया हमारा पहला वाला एलिमेंट। अब दूसरे वाले एलिमेंट पे हम चलते हैं। वी वुड स्टिल रिमेन इन द फर्स्ट रो इटसेल्फ ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, बट नाउ वी विल शिफ्ट टू द सेकेंड कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। देखो, पिछले बार मैंने 1 3 को गोल किया था और अभी ये रिंग बस इधर से इधर शिफ्ट हो गया है, सेकेंड मैट्रिक्स का रिंग शिफ्ट हुआ है। नाउ वी विल डू द सेम थिंग एज वी हैव डन इन द फर्स्ट एलिमेंट, वी विल डू द सेम थिंग टू फाइंड द सेकेंड एलिमेंट। इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, एंड फिर इन दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, 3 इंटू 2, दिस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। अब हमें क्या करना है, फिर हमें इस चीज को रिपीट करनी है। नाउ वी हैव टू रिंग
दिस एंड दिस, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। फिर वो सेम चीज, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो अभी हम ये एलिमेंट करेंगे, दैट मीन्स 5 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 0 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3। अब हम इस एलिमेंट को कैसे निकालेंगे? सिंपली अब हम इस रिंग को, ये वाले रिंग को बस उधर शिफ्ट कर देना है, नेक्स्ट वाले कॉलम में ये शिफ्ट हो जाएगा यहां। और फिर अब क्या होगा? 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4। और इसको सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो 3 इंटू 1 इज 3 एंड 4 इंटू 3 12। सो 12 प्लस 3 इज 15 and this is 3 to the 6, 4 4 the 16, 16 plus 6 is 22, 5 ones are 5 and 3 zeros are 0, so this is just 5, and this is 5 twos are 10 and 4 zeros are 0, so this is 10. This is our answer, and you see this is also 2 by 2 jo aana chahiye tha, and this is AB, this is AB. Now I would give you a particular homework to try, and then we will proceed further with more of such questions. ये जो हमने ए बी निकाला, तुम बी ए निकालना। बी ए का आंसर क्या होगा? मींस अब तुम बी को पहले लिखना। बी इज आवर 1 2 3 4 एंड ए इज 3 4 5 0। तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, यस, बिकॉज 2 by 2 2 by 2। तो ये मत बोलना कि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये नंबर और ये नंबर सेम है, और इसका प्रोडक्ट जो आएगा उसका ऑर्डर होगा दिस 2 इंटू दिस 2 मीन्स 2 by 2। तो अब हम कैसे करेंगे? ये बिल्कुल उसी टेक्निक से करनी है। मैं जस्ट एक ओवरव्यू बता देता हूँ हाउ डू डू इट। तो यू विल रिंग इन द फर्स्ट फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट एलिमेंट दिस रिंग एंड दिस रिंग। अब तुमको इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 2 को 5 से, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम रिंग इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, इस तरह से फिर जब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट निकालोगे तब रिंग इधर एंड यहाँ पे ये इस तरह से रिंग हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, एंड नेक्स्ट टाइम में ये रिंग इधर चला जाएगा। सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। इसका जो आंसर होगा तुम देखना और डिसाइड करना कि क्या ए बी का आंसर और बी ए का आंसर सेम है या डिफरेंट है। तुम्हें खुद इसका आंसर मिल जाएगा कि ए एंड ए बी इंटू ए बी इज नॉट इक्वल टू बी बी ए। ठीक है, तो आई होप यू विल ट्राई इन दिस, एंड आगे हम बहुत सारे और क्वेश्चंस करने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू इट। गॉड ब्लेस यू।